So dear children, let us start from the next part of the chapter. So children, as we had been dealing with the previous part, you had seen that the writer had been able to get something in his stamp collection, on account of which he was now quite confirmed that there is the existence of third level somewhere. कि आपने इससे पहले के पार्ट में क्या देखा था कि राइटर को अपने स्टैम्प कलेक्शन में कुछ ऐसा मिल गया था कि जिसकी वजह से वो इस बात के लिए पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका था कि हाँ, थर्ड लेवल कहीं ना कहीं एग्जिस्ट जरूर करता है. तो हम लोगों ने यहां पर कल की बात छोड़ी थी एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्दर. सो लेट अस सी व्हाट द राइटर हैड फाउंड आउट कि आखिर राइटर को ऐसा क्या मिल गया था. नाउ सी, पे अटेंशन. My friend Sam Wiener disappeared. So actually the matter was that the writer's friend Sam Wiener, it was the same psychiatrist friend with whom the writer had shared the matter of his visit to the third level. So the writer's friend Sam Wiener had disappeared and nobody knew where he had been. Nobody knew where he had gone. कि राइटर का फ्रेंड सैम वीनर डिसअपियर हुआ था और उसे ये पता भी नहीं था कि वो कहां चला गया है. कोई भी ये नहीं जानता था कि वो सैम वीनर आखिर कहां चला गया. But I sort of suspected because Sam is a city boy and I used to tell him about Galesburg. I went to school there and he always said that he liked the sound of the place and that is where he is alright in 1894. So what the writer is telling you here, that nobody actually knew where Sam Wiener was. Nobody had known where Sam Wiener was, but the writer was a bit suspected about it. The writer had got a bit of suspicion about it. The writer was to a great extent sure that his friend Sam Wiener is going to be in Galesburg. He must have been in Galesburg and he would definitely be there in the period of 1894. कि राइटर को इस बात का शक था कि सैम वीनर जो है वो निश्चित तौर पे गेल्सबर्ग में होगा और 1894 के गेल्सबर्ग में होगा, क्योंकि वो राइटर जो है वो अपने फ्रेंड सैम वीनर को अपने स्कूल डेज में गेल्सबर्ग के बारे में बताता था और उसके मन में एक फैसिनेशन आ गया था थर्ड लेवल के गेल्सबर्ग के लिए. उसके मन में एक फैसिनेशन आ गया था गेल्सबर्ग के लिए. तो जब राइटर ने उसको बताया होगा कि कहीं थर्ड लेवल है और वहां से वो जो है गेल्सबर्ग जाने की बात सोच रहा है, तो सैम वीनर के भी मन में आ गया होगा कि क्यों ना वो भी गेल्सबर्ग जाए और किसी न किसी तरीके से डेफिनेटली सैम वीनर ने थर्ड लेवल का रास्ता ढूंढ लिया होगा जो कि राइटर नहीं ढूंढ पा रहा था. तो इस तरीके से द राइटर हैड गॉट अ सस्पिशन, द राइटर हैड गॉट अ डाउट इन हिज माइंड दैट डेफिनेटली हिज फ्रेंड सैम वीनर इज गोइंग टू बी ऑन द third level and in Galesburg city and he would be in the period of 1894. कि राइटर को यह शक कंफर्म हो गया था कि उसका फ्रेंड सैम वीनर जो है उसने जरूर से थर्ड लेवल का रास्ता पता लगा लिया होगा और वो वहीं पे होगा. ये बात आपने देखी यहां पे. Because one night fussing with my stamp collection I found, well, do you know what a first day cover is? So children, here the writer is telling you that one particular night, as he had been fussing with his stamp collection, as he had just been fussing, and he had just been fumbling his stamp collection, कि जब वो अपने stamp collection को fumble कर रहा था, उसके पन्ने पलट रहा था, तो he just found a first day cover. उसको एक first day cover मिला. तो यहाँ पे writer आपको बता रहा है कि first day cover क्या होता है. तो already you people have been given the information about what a first day cover is. You have been told that when a particular dark ticket is released, what the collectors do, they purchase the dark ticket and they paste it upon a blank envelope and write their own address. They make the envelope self-addressed and they post the envelope onto their own address, and then as the dark ticket is stamped by the post office, it becomes a mark for the release of that dark ticket. तो ये आपने देखा कि वो फर्स्ट डे कवर क्या होता है कि जिस दिन कोई भी डाक टिकट रिलीज होता है तो ये जो कलेक्टर्स होते हैं वो खरीद लेते हैं और एक सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप पे उसको चिपका करके अपने ही पते पर भेज लेते हैं. तो ये फर्स्ट डे कवर बन जाता है और उसके ऊपर जो मुहर लगती है वो मुहर इस बात का प्रमाण होती है कि किस डेट पे वो रिलीज हुआ था. तो उस दिन राइटर को एक ऐसा ही फर्स्ट डे कवर मिला, लेकिन ये फर्स्ट डे कवर कोई ऑर्डिनरी फर्स्ट डे कवर नहीं था जिस तरीके से सारे होते थे. ये उससे बड़ा डिफरेंट था. ध्यान दीजिए. तो आपको क्या बताया जा रहा है कि नॉर्मली ये फर्स्ट डे कवर्स के बारे में कि दे आर नेवर ओपन, कि जनरली हम इन फर्स्ट डे कवर्स को ओपन नहीं करते हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी लेटर इन देमसेल्व्स. वो ब्लैंक होते हैं, उसके अंदर केवल एक ब्लैंक स्लिप पड़ी होती है, तो उसे जनरली कभी ओपन नहीं किया जाता है. लेकिन इस बार जो फर्स्ट डे कवर आया था ये थोड़ा डिफरेंट था. That night, among my first day covers, I found one that shouldn't have been there. So children, what you have been told here, that while the writer had been fumbling with his
stamp collection. While the writer had been fussing with the stamp collection, he found one particular first day cover that shouldn't have been there. कि उस दिन अपने स्टैम्प कलेक्शन को पलटते हुए उसमें राइटर को एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला जो उसमें होना ही नहीं चाहिए था। अब वो क्यों नहीं होना चाहिए था? क्योंकि उसको पलटते हुए राइटर को एक फर्स्ट डे कवर मिला, और वो फर्स्ट डे कवर क्या था? वो फर्स्ट डे कवर वो एक ब्लैंक स्लिप उसके अंदर नहीं थी, बल्कि वो एक एक्चुअल लेटर था। और वो लेटर उसके फ्रेंड सैम वीनर, उसका ये फ्रेंड सैम वीनर जो थर्ड लेवल पे पहुंच गया था 1894 में, वहां से उसने उस लेटर को राइटर को लिखा था। तो अब इस दुनिया के हिसाब से तो 1894 जो है ये किसका पीरियड था? 1894 ये राइटर के ग्रैंडफादर का पीरियड था। तो ये जो सारे फर्स्ट डे कवर लगे हुए थे वो सीक्वेंस में लगे हुए थे। तो सीक्वेंस में ये फर्स्ट डे कवर आकर के उसी सीक्वेंस में 1894 के सीक्वेंस में वो उसमें फिट हो गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि ये फर्स्ट डे कवर जो है ये ब्लैंक स्लिप वाला नहीं था, ये खाली नहीं था, बल्कि इसके अंदर एक लेटर था। और उस लेटर में क्या लिखा हुआ था वो अभी आप आगे चल करके देखेंगे। तो यही बात राइटर बता रहा है कि उस दिन उसको एक फर्स्ट डे कवर मिला जो कि फर्स्ट डे कवर वहां पे होना ही नहीं चाहिए था। तो देखिए, ध्यान दीजिए, that shouldn't have been there, but there it was, but very surprisingly it was there. It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. So it was there because somebody had mailed it to the writer's grandfather in Galesburg in 1894. कि इस दुनिया के हिसाब से 1894 तो राइटर के ग्रैंडफादर का पीरियड था, लेकिन अब सैम वीनर 1894 में पहुंच चुका था। तो जब वो 1894 में कोई भी लेटर लिखेगा तो वो राइटर के ग्रैंडफादर के पीरियड में तो आकर के इकट्ठा होगा। तो इस तरीके से वो सैम वीनर तो 1894 से वो लेटर लिख रहा है, लेकिन वो आकर के इस दुनिया में राइटर के ग्रैंडफादर के कलेक्शन सीरीज में वो 1894 की डेट के हिसाब से वो एडजस्ट हो गया। तो राइटर वही चीज यहां पे बता रहा है कि इट वॉज समबडी हु हैड मेल्ड अ लेटर टू माई ग्रैंडफादर इन गेल्सबर्ग इन 1894। तो 1894 में किसी ने राइटर के ग्रैंडफादर को एक लेटर भेजा था, लेकिन एक्चुअली किसी ये और कोई नहीं था, ये सैम वीनर जो अभी यहां से 1894 में चला गया है, उसने जब लेटर लिखा तो अब वो तो राइटर का दोस्त सैम वीनर तो 1894 में है, तो वो तो जब लिखेगा तो वो 1894 के ही उसमें जाएगा। तो इस तरीके से वो लेटर जो है वो आ गया था। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, अभी जब मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको मैनुअली तब आपको ये और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो कह रहा है कि बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, दैट इज व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड। तो राइटर के ग्रैंडफादर का एड्रेस एनवेलप पे लिखा हुआ था, क्योंकि सैम वीनर 1894 में पहुंच चुका था, तो 1894 में राइटर का एग्जिस्टेंस नहीं था जिस दुनिया में सैम वीनर पहुंच गया था, लेकिन राइटर के ग्रैंडफादर का एड्रेस था। तो राइटर के ग्रैंडफादर को सैम वीनर ने लिखा, लेकिन यहां आकर के वो राइटर को मिल गया। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894 की 1894 से ही उसके कलेक्शन में था। एंड द पोस्टमार्क शोड इट, उसके ऊपर पोस्टमार्क, उसके ऊपर मुहर भी लगी हुई थी 1894 की। येट आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल। तो राइटर ने अपने इस स्टैम्प कलेक्शन को बहुत बार पलट करके देखा था, लेकिन उसने कभी भी इस वाले फर्स्ट डे कवर को नहीं देखा, क्योंकि ये फर्स्ट डे कवर तो अभी 3-4 दिन पहले आया था। क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले उसका फ्रेंड जो है 1894 में गया, लेकिन अब चूंकि वो गया 1894 में, तो वो लेटर 1894 के सीक्वेंस में आकर के लग गया। ये साइंस फिक्शन है, इसको फिक्शन के हिसाब से समझिएगा, इसमें दिमाग न लगाइएगा, इसको जो है फिक्शन के हिसाब से देखिएगा। ध्यान दीजिए। तो कह रहा है कि आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल। द स्टैम्प वाज अ 6 cents डल ब्राउन विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गैरफील्ड। तो ये 1894 में प्रेसिडेंट गैरफील्ड यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे, तो उनके जमाने का ये डाक टिकट था, प्रेसिडेंट गैरफील्ड के जमाने का। तो नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, इट वेंट राइट इनटू द कलेक्शन एंड स्टेड देयर टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट। तो अब ये जो था ये लेटर 1894 के सीरीज में ऑथर के ग्रैंडफादर के कलेक्शन में जाकर के लग गया, लेकिन ये ब्लैंक नहीं था। जैसे हर फर्स्ट डे कवर में अंदर एक ब्लैंक स्लिप रखी जाती थी, तो वैसे ये ब्लैंक स्लिप वाला फर्स्ट डे कवर नहीं था। इसके अंदर एक लेटर था और उस लेटर में कुछ लिखा हुआ था। द पेपर इनसाइड वाज इन ब्लैक, इट रेड, मींस देयर वाज अ लेटर इनसाइड इट। व्हाट दैट लेटर वाज, दैट यू विल सी। नाउ चिल्ड्रन, जस्ट पे अटेंशन अपॉन दिस लेटर दैट हैज बीन रिटन बाय सैम वीनर। सो दिस लेटर दैट हैज बीन प्रेजेंटेड बिफोर यू हैज बीन रिटन बाय सैम वीनर एंड द एड्रेस इज गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, 18 जुलाई 1894। क्योंकि जहां सैम वीनर गया है, उस साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड जहां गया है, वहां 18 जुलाई की डेट है, 18 जुलाई 1894। तो ध्यान दीजिए
चार्ली। अब चार्ली ये राइटर का नाम है, तो सैम वीनर ने राइटर को लिखा चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, कि मैं ये चाहता था कि मुझे ये पता था कि तुम सही हो, एंड देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, और फिर मुझे ये विश्वास हो गया कि तुम सही हो, एंड चार्ली इट इज ट्रू आई फाउंड द थर्ड लेवल। सो ही राइट्स दैट अल्टीमेटली ही हैड बीन एबल टू फाइंड द थर्ड लेवल। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको पहले की बात याद हो तो जब राइटर थर्ड लेवल पे गया था तब उसने अखबार देखा था, उस दिन जो है वो 18 जून या समथिंग की डेट थी, और ये 18 जुलाई मतलब एक महीने ये दोनों मिलकर के ढूंढ रहे थे रास्ता थर्ड लेवल का, लेकिन राइटर को नहीं मिल पाया और इसको सैम वीनर को मिल गया, साइकियाट्रिस्ट को मिल गया और वो चला गया। तो ध्यान दीजिए, वो कह रहा है कि आई फाउंड द थर्ड लेवल, दैट ही हैड बीन एबल टू गेट टू द थर्ड लेवल। आई हैव बीन हियर फॉर 2 वीक्स एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट डेलीज, तो वो डेलीज नाम की जगह पे है। समवन इज प्लेइंग ए पियानो एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सीइंग नेली होम। तो इस तरीके से वो थर्ड लेवल को डिस्क्राइब कर रहा है, थर्ड लेवल के गेल्सबर्ग को डिस्क्राइब कर रहा है, 1894 की गेल्सबर्ग को डिस्क्राइब कर रहा है कि सब लोग अपने लॉन में बैठे हुए हैं, कोई पियानो बजा रहा है और लोग बड़े जो है मधोशी वाले अंदाज में ये गाना गा रहे हैं, सीइंग नेली होम एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर अ लेमनेड, और किसी ने इसको लेमनेड पे, नींबू के शरबत पे इन्वाइट भी किया है। तो कह रहा है कि कम बैक चार्ली एंड लुइसा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट इज वर्थ इट बिलीव मी। तो वो इसको भी मोटिवेट कर रहा है, राइटर को भी मोटिवेट कर रहा है कि चार्ली और लुइसा तुम लोग भी तलाश करते रहो और थर्ड लेवल पे आ जाना, इट इज वर्थ इट। यहाँ पे आना जो है वो पैसे की बर्बादी नहीं है, यहाँ पे आना जो है वास्तव में वर्थ इट है, आना वेलकम। तो इस तरीके से वो लेटर लिख रहा है और नीचे उसने अपना सिग्नेचर किया सैम। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सैम वीनर जो है वो थर्ड लेवल पे पहुंच चुका है। और थर्ड लेवल पे क्या डेट चल रही है, 18 जुलाई 1894 की, और वहां से उसने लेटर भेजा है। द नोट इज साइंड सैम। So children, you can see and you can just mind it that the letter had been signed by Sam Weiner, means the psychiatrist friend had been able to reach the third level. वो पहुंच गया था और वहां पे 1894 की डेट चल रही थी, 18 जुलाई 1894 की डेट चल रही थी, और वहां से जब उसने लेटर लिखा तो डेट के सीक्वेंस में सारे फर्स्ट डे कवर्स राइटर के कलेक्शन में अरेंज थे, तो उसी में डेट के सीक्वेंस में ये वाला फर्स्ट डे कवर भी लग गया। लेकिन ये फर्स्ट डे कवर ब्लैंक नहीं था, बल्कि इसमें लेटर था, और वो लेटर क्या था वो आपने ऑलरेडी देखा। अब राइटर आपको एक और रेवलेशन करने जा रहा है, एक और रहस्य उद्घाटन करने जा रहा है। देखिए, एट द स्टैम्प एंड क्वाइन स्टोर आई गो टू, I found that Sam bought $800 worth of old style currency. That as the writer had purchased the old currency for $300, his friend Sam Weiner had purchased the old currency for $800. $800 की उसने old currency खरीदी. That ought to set him up in a nice little hay, feed and grain business. की इस $800 को old style currency में change करके उससे उसने बहुत बढ़िया वहां पे एक हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस की, मतलब हे का मतलब भूसा, फीड का मतलब जो जानवरों को खिलाने वाला फीड होता है, और ग्रेन जो दाने वगैरह का, इस तरीके से चूनी और दाने वगैरह का बिजनेस, इस तरीके का उसने एक जो है वो ग्रेन मर्चेंट का काम उसने वहां पे शुरू कर लिया। ही ऑलवेज सेड दैट इज व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू। तो यही वो करना चाहता था। वो हमेशा राइटर से कहता था कि मेरा बस चले तो मैं ये साइकियाट्रिस्ट का काम छोड़ करके एक ग्रेन बिजनेस शुरू कर दूं, और यही बिजनेस उसने वहां पे शुरू किया। तो कह रहा है कि एंड ही सर्टेनली कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, क्योंकि वहां पे वो अपने ओल्ड बिजनेस, अपने जो है वो साइकियाट्रिस्ट का तो बिजनेस शुरू नहीं कर सकता है, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट के बिजनेस के लिए उसको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, उसको डिग्री चाहिए, और डिग्री तो आगे के ईयर्स की है, तो कैसे पास्ट में वो जो है वो डॉक्टरी शुरू करता। तो उसने यही ग्रेन का बिजनेस शुरू कर लिया। ध्यान दीजिए, नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894 हिज ओल्ड बिजनेस, वाई सैम वाज माय साइकियाट्रिस्ट। तो कह रहा है कि ये सैम वही है जो कि मेरा साइकियाट्रिस्ट था, और इसने अपना ओल्ड फैमिली बिजनेस जो ग्रेन और हे का बिजनेस था, भूसे और दाने का बिजनेस था, वो उसने वहां पे शुरू कर लिया। तो इस तरीके से आपने देखा कि थर्ड लेवल जो कि सब लोग ये मान रहे थे कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो एक अनोखी दुनिया में एग्जिस्ट करता था, और राइटर का साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड वहां पे पहुंच चुका था, और बाय चांस एक दिन राइटर खुद भी पहुंच गया था। तो ऐसी बहुत सारी अनदेखी दुनिया है, ऐसा नहीं है कि ऐसी अनदेखी दुनिया नहीं है। पैरेलल यूनिवर्स, अगर आप जो है हॉटस्टार आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप हॉटस्टार देखिए, उस पर एक सीरीज भी है पैरेलल यूनिवर्स, और अगर आप उसको देखिए तो आपको पता चलेगा कि हमारी इस दुनिया के साथ ऐसी न जाने और कितनी संभावित दुनिया है कि जिसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम चलता है। बाकी और चीजों को हम जब कभी सामने आएंगे तो फिर हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे रिवीजन वगैरह में, तो हम इसको और डिटेल में देखेंगे। तो आई होप यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू।